Hello everybody, one more time welcome back to you all. Myself Ambujraj, and finally we are back into our channel AI Foundation. So dear guys, first of all a very happy good morning, good evening and good afternoon to you all. So dear guys, as we all can see, today we are going to start another chapter which is our sound from class 9th physics. So this chapter might be having certain preconception in your mind. Means that most of the students might be having certain pre-idea about this chapter. Most of the students might be thinking that this chapter is so easy, quite easy, that we will study even in certain moments, or we can say कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत कम टाइम लगने वाला है. But for your understanding, let me tell you that this chapter is going to be a vast chapter for you all. If you will take little interest in this chapter, because this chapter is so lengthy. So here in this video, first of all, I'm going to tell you about how sound is produced, and second thing, how sound propagates, means how sound travels. So without wasting our time, let's continue our session. So the first thing that we ask is what is sound? How we can define sound? So sound is a form of energy. Am I right? So you might be having this particular idea or answer. Sound is a form of energy. So we can write here it is a form of energy which needs a material medium for its propagation. But dear guys, this is the one way. ये तो किताबी रटा हुआ है कि इसे हम लोग साउंड को डिफाइन कर देते हैं. But even we can define sound in some but other way also. So let's define in another way. So sound is what? So actually guys, जब भी आप कहीं पर भी साउंड को नोटिस करेगा ना, so कहीं ना कहीं आपको एक वर्ड मिलेगा, वो है sensation or either vibration. So we can write here the sensation felt by our ears is called sound. So यहाँ पे लिख सकते हैं ना, the sensation felt by our ears is called sound. So here we define the sound in two ways. First way is by what? First way we defined here by its form, or we can say by its characteristics. And second one, how we hear sound, or we can say how sound travels. In both the cases, we defined sound concerning its characteristics only. So as you all can see, in order to tell about something, first of all, we have to define their characteristics or their certain natural events. Okay. So coming back to our point, first of all, we are going to see how sound travels. As we all know, guys, light is also a form of energy. Am I right? Light, heat, our sound, so etc. There are so many different forms of energy. So dear guys, as we all know, in order to propagate any energy from one place to another, or from one medium to another medium, they require something. What is that? Do you know? They require something. First is that they need a disturbatory path, or we can say they need one disturbance. सपोज हम अपने घर में तो ठीक है भैया, अब आपके घर में जाना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फोन करेंगे आपको कि भैया हम आपके घर पे आ रहे हैं. सो ये भी एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है. आप मानो या ना मानो, हमें तो कह देते हैं मुंह पर, हाँ भैया आप तो मेरे लिए बहुत बढ़िया, आपको हम कैसे बुरा बोल सकते हैं. बट कहीं ना कहीं हम आपको डिस्टर्ब करते हैं. लाइक दैट ओनली दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नीड ए वाइब्रेटरी और ए डिस्टर्ब मीडियम, या फिर कहूं कि ये डिस्टर्ब्ड पाथ को फॉलो करते हैं. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना सीधे कि दीज ऑल नीड्स वेव्स. अब व्हाट इज वेव्स, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को वर्ड आना ही पड़ेगा. सो ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच टेक्स और विच हेल्प्स द एनर्जी टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इसको कैसे डिफाइन करें, देखिएगा. ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस
which makes energy to get traveled from one place to another. ठीक है, one place to another. So the simple way through which we can define waves. ये तो रटी रटाई बात हो गई, तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई इसका भी वेव होता है, इसका वेव होता है, इसका वेव होता है, या फिर कहें तो जितने भी एनर्जीज होते हैं सभी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है, वो गाड़ी है हमारा वेव्स. ओके, द सेकेंड थिंग arises, how many types of waves are there, how we can classify these all waves, or how these all waves are correlated or they are different from each other. So for your convenience, let me tell you there are 3 types of waves. These all topics are very very essential for us, not for our class 9th basis but for also our future basis. So यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है. There are 3 types of waves. First thing our electromagnetic waves, ठीक है, electromagnetic. Second thing our mechanical waves, and third one our matter waves. So dear guys, कहीं ना कहीं आपको by its name only कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा होगा, because in last chapter we used the term mechanical, there we used potential plus kinetic. मैटर को तो नाम जानते ही हो आप, solid liquid gas. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने पढ़ा ही है क्लास 8 में, means that electricity produces magnetic effect also. So कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये तीनों टर्म्स जो हैं हम लोग को सुना हुआ लग रहा है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप लोग इन प्री कंसेशन रखा है इन सभी के बारे में, द सेम थिंग वी हैव टू यूज हियर आल्सो. फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक्चुअली दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. दे आर फ्री. उनके पास इतना एनर्जी रहता है कि कोई हमको रोके या ना रोके, किसी का कोई बैसाखी का जरूरत नहीं, आराम से आएंगे, दौड़ के जाएंगे. सो दे हैव दैट पोटेंशियल टू ट्रेवल बाय देमसेल्फ, मींस दैट दे डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation. So भाई हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात. तो इसका एग्जांपल बहुत सारे पड़े हुए हैं. कौन से बताइए? तो आपको इस नाम पड़ेगा, ये नाम पड़ेगा. आप कई बार रेडियो वेव्स के बारे में सुनते हैं. तो ये सभी वेव्स जो होते हैं ना, ये खुला होते हैं, इन्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, अकेले आएंगे अकेले जाएंगे. बट जो हमारा साउंड वेव होता है वो होता है मैकेनिकल वेव, याद रखिए, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स. एंड दीज वेव्स रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. और यही कारण है कि आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है. व्हाई? बिकॉज द लैकेज ऑफ एनी मैटर पार्टिकल्स, एंड ड्यू टू द लैकेज ऑफ मैटर पार्टिकल्स हम लोग का ये नहीं ट्रेवल कर पाता है. लेकिन बात आती है फिर मैटर वेव्स, भैया क्या है? सो जैसे आपने पढ़ा कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स, आइदर बैड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड देन सेमी कंडक्टर. तो ये जो मैटर वेव्स होते हैं ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को मिले जुले रखते हैं और ये हमारे सेमी वेव्स कहलाते हैं. या फिर मैं कहूं तो ये दोनों का सेमी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैटर वेव्स के पास होते हैं. तो इसका एग्जांपल भी आपको 11th में मिल जाएगा. अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो कमेंट करेगा, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है. ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है बट आपको समझने के लिए ईजी रहता है. ठीक ना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. बट डियर गाइस, जब हम लोग इस चैप्टर में आते हैं, इस क्लास 9th में आते हैं, तो बेसिकली हम लोग को बात करनी पड़ती है साउंड वेव्स के बारे में. So actually mechanical waves are further classified into 2. कौन कौन है आपको डिटेल से बताता हूं. या फिर मैं कहूं कि ये तीनों का भी फर्दर, जैसे आपको क्लास 10th में मैंने बायोलॉजी में बताया कि फर्दर सेंसरी नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ये सभी को डिफरेंशिएट करके या फिर इनका डिवीजन हो गया मेरा सेंसरी एंड मोटर नर्व में. द सेम थिंग यहां पर भी था कि दीज ऑल parental waves were classified into subparental waves और इनका बच्चे भी आ गए. So in class 9th we have to study those their children only. जो फर्स्ट चिल्ड्रन आया उसका नाम था मेरा ट्रांसवर्स वेव. कौन सा था? फर्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लिख दो. अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल लिखना है तो फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल कर दो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. एंड सेकेंड थिंग आवर ट्रांसवर्स वेव. आइए टॉपिक ऊपर. फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो डियर गाइस, यू ऑलवेज रिमेंबर दीज वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और साउंड वेव्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, याद रखिएगा. अब देखिए इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है या फिर इनका अपना स्पेशल
नेचर का क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को पढ़ने। द फर्स्ट थिंग, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द मूवमेंट ऑफ द वेव्स आर हैविंग ए रिलेशन विथ ईच अदर। सो देखते हैं कैसा रिलेशन होता है। इन दिस केस, suppose the particles are vibrating here like this, to and fro, to and fro, to and fro, and through the same path waves also travel। ठीक है, यानी हमारा जैसे लेफ्ट राइट हमारे साउंड का पार्टिकल्स या फिर किसी का भी कोई भी वेव्स के पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे होंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट या फिर टू एंड फ्रो इन द सेम पाथ द वेव्स ऑल्सो ट्रेवल। जैसे ये पार्टिकल्स को मैंने शो किया, तो ये जो एरोस हैं, दीज आर डिनोटिंग आवर waves. But in case of transverse wave, they have a different relationship with each other. In this case, suppose the particles will vibrate in a vertical क्या horizontal, आप बताइए, ये हमारा vertical लाइन से कि horizontal? बहुत बार कंफ्यूजन आती है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा ऐसे होगा, खड़ा हुआ रहेगा, तो उसे वर्टिकल बोलेंगे, एंड जो ये वाला होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। So in this case, the particles vibrate in vertical position, but the waves travel in horizontal position। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिखता है। समझ में आ गया आपको? तो ये सभी पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल्स कोई भी मीडियम के हो। और एक बात याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे तीनों स्टेट्स में ट्रेवल करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। बट ये वाला जो होता है ये दो ही जगह करता है, एक तो मेरा सॉलिड में और एक होता है लिक्विड में। इससे गैस में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। बट फर्दर वी कैन से एग्जांपल्स हियर। एग्जांपल आपका सबसे बड़ा साउंड वेव्स, एंड यहाँ पे एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं कि लाइट जो भी होता है ना, ये भी मेरा एक प्रकार का ट्रांसवर्स होता है, एक प्रकार का, ना कि ये मेरा फुल्ली ट्रांसवर्स वेव है। एंड आप रेडियो वेव भी ले लो, ये सभी भी हमारे ट्रांसवर्स वेव में भी आ जाते हैं। बट आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल आपके 9th क्लास के बुक में है, वो है वाटर रिपल्स। क्या है? वाटर रिपल्स। चलो भाई, वाटर रिपल्स कहां से देखें भैया? आओ, सपोज इफ यू बिलोंग टू एनी विलेज एरिया, then you might have observed the water ripples. But suppose you are not in a village area and there is no any surrounded nearby pond in your surrounding. So what will you do? बहुत सिंपल एग्जांपल है। आपको क्या करना है? You have to take one glass of water, or either you can take one bucket of water. There you have to put one small concrete rock in that. अगर आप गिलास ले रहे हो तो आपको थोड़ा और छोटा एक पत्थर को डालना है। बट उस कंडीशन में क्या होता है, आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फिजिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। सो मान लो जब आप उस ऑब्जेक्ट को, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो भाई मेरा ड्राइंग तो बहुत मस्त है ही, तो मान लो ये मेरा बकेट है। इस बकेट को मैंने टिल हियर आई फिल्ड दिस बकेट विथ वाटर एंड नाउ आई एम ड्रॉपिंग वन स्मॉल स्टोन इन दिस वाटर। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब ये डाउन बढ़ जाएगा तो ऐसे ऐसे कुछ वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ये कुछ साइन प्रोड्यूस करता है। यही मेरा वाटर रिपल्स होते हैं। ठीक है, एंड ये हमेशा देखना कि ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे एंड वाटर का पार्टिकल अप डब 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 होगा। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड जो हमारा इसका जो सर्कुलर रीजन होगा या फिर जो वहाँ पे सर्कल बन पाएगा वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, या कहें तो ऐसे ऐसे हो जाएगा और पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे इस ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी को 100% शो ऑफ करते हैं। कोई डॉट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग जब क्लास 9th में आते हैं तो हम लोग को विथ द स्प्रिंग शो किया जाता है। तो विथ द स्प्रिंग का एक टर्म बहुत एग्जाम्पलर है, या फिर कहूँ कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। अब ये भाई कौन सा टर्म है? ये टर्म है स्लिंकी। स्लिंकी, व्हाट इज स्लिंकी? ए स्लिंकी इज ए टोटली फ्लेक्सिबल स्प्रिंग विच वी कैन यूज टू चेंज इट्स शेप इजिली। ऐसे तो सभी स्प्रिंग का जो शेप होता है वो मोस्टली फ्लेक्सिबल होता है, बट ये जो स्लिंकी होता है ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इन योर लैबोरेटरी। ओके गाइस, सो विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी आई विल टेल यू द मूवमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड विद द proper
वेव्स डायग्राम आई विल रिप्रेजेंट दीज टू। तो पहले स्लिंकी के थ्रू आप इसको लॉन्गिट्यूडनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू रेज द बोर्ड एंड आपको एक प्रॉपर डायग्राम दिखाता हूं बोर्ड पर, ठीक है। देखिए आगे आने वाला है हमारा। ओके डियर गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट यू द longitudinal waves. So now please pay your attention over here because I'm going to explain you something important. First one, longitudinal. Longitudinal स्पेलिंग देखना चाहिए, स्पेलिंग सही है, LONG longitudinal, सही है ना, longitudinal, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट longitudinal waves. ओके गाइस, सो चलिए इसको देखते हैं। And before that, let me see video quality नहीं आ रहा है। Okay, all right. First, we are going to see the certain important things that we have to keep in our mind when we go through our longitudinal waves. So, longitudinal waves को मैंने आपको जैसे पहले बताया कि with the help of Slinky, I will represent you. चलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक स्लिंकी का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। स्लिंकी इज आवर नथिंग बट आवर ए फ्लेक्सिबल स्प्रिंग विच वी यूज इन आवर लैबोरेटरी। तो ध्यान रखिएगा जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो टर्म हम लोग को याद रखना रहता है। एक होता है कॉम्प्रेशन, ठीक है, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस के आगे ION लगा दो, कॉम्प्रेशन। एंड सेकेंड होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, एम आई राइट। चलिए हम लोग बात करें कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। सो फर्स्ट थिंग, कंप्रेशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो अगर आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो कंप्रेशन इज ए रीजन वेयर वी फील हाई डेंसिटी। क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, एंड हियर लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मोर मास एंड मोर वॉल्यूम। ये कोई भी बड़ा हो सकता है मास अपॉन वॉल्यूम में, तो मेरा कंप्रेशन रीजन आ जाएगा। रिफ्रैक्शन में टोटली अपोजिट हो जाता है। बट गाइस यू हैव टू पे वन थिंग, यू हैव टू पे योर अटेंशन ओवर हियर कि हम लोग को एक चीज याद रखना है कि ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, एंड ये वाला मेरा, ये वाला रीजन, या फिर मैं कहूँ ऐसे ऐसे थोड़ा बड़ा बना दूं तो ये वाला रीजन रिफ्रैक्शन हो गया। ये तो हो गया विद द स्लिंकी। बट आपको स्लिंकी से समझाया जाता है, बट इसका प्रॉपर जो हम लोग को डायग्राम मिलता है वो विथ द रे डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाया जाता है, या फिर वेव डायग्राम के थ्रू। तो चलो एक बार वेव डायग्राम में बना देता हूं। बट बिफोर दैट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो साउंड का टॉपिक है, यू विल ऑल्सो गेट दिस टॉपिक इन क्लास 11th। सो यहाँ पर ऐसा कोशिश करिए कि आपको 100% ये सभी टॉपिक्स इजी से समझ में आ जाए। तो 11th में आपको ये सभी बेसिक टॉपिक्स नहीं मिलने वाले हैं। सो आपको ये मैं प्री आइडिया दे देता हूं। चलिए फर्दर, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए वेव डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वी यूज वन थिंग। ये याद रखेगा, कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। क्या है भाई, इसका नाम है वेट देखिएगा ध्यान से। ये हमारा डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। क्या है, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। याद रखिए, ओके। अब आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। सो डायग्राम को बनाने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि देयर आर कितने एक्सिस होते हैं भाई, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। सो इसके लिए हम लोग को वैसे ही अपना जो क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सिमिलरली ऐसे बना लेना है। यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस, यहाँ पे अपना वाई एक्सिस। अब देखना है कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। तो भाई कैसे किसको पे लिखें, तो आपको तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भैया एक्स एक्सिस तो हमारा डिस्टेंस को शो ऑफ करेगा, बट भाई आ जाती है कि डेंसिटी फिर क्या हो गया, डेंसिटी को कौन शो कर रहा है। तो डेंसिटी को इन दिस केस में हम लोग को याद रखना है वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। सो हियर ये हमारा डेंसिटी को शो ऑफ कर रहा है एंड इस साइड मेरा डिस्टेंस को शो ऑफ कर रहा है, डिस्टेंस। सो पहले बनाते हैं हम लोग कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन बोथ। तो भाई यहाँ से 0 से हमारा वेव स्टार्ट हुआ, ऐसे मूव किया, 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 ऐसे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट आती है
कि भैया हमने पढ़ा है कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ऐसा वेव बनता है। अरे मूर्ख, वेव का असली फॉर्म ऐसा ही होता है, ठीक है। ये वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस का अपना जो असली नेचर होता है या असली शेप होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वेव ऐसे ही मूव करता है, ऐसे ही पाथ पे। अब भैया कहेंगे कि आपने बुक में बताया ऐसे स्लिंकी के बारे में। स्लिंकी आपको समझाने के लिए, स्लिंकी आपको क्या कहूं मैं, स्लिंकी इज नॉट ए प्रॉपर मेथड और इट इज नॉट ए डिसिप्लिन्ड मेथड, क्योंकि फिजिक्स आपको समझाता बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आपको लिखने की बारी आती है तो आपको विथ द वेव डायग्राम को ही शो ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जहां पर तुम देखो कि रीजन काफी कॉम्पैक्ट है, जैसे ये रीजन को ले लो, ये दोनों रीजन के कंपेयर में ये वाला रीजन काफी कॉम्पैक्ट है, तो ये रीजन मेरा कॉम्प्रेसेशन हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। फर्दर देखो तो ये वाला रीजन फिर से हमें लग रहा है कि ये भी कॉम्प्रेसेशन शो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से कम है तो रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये देखो ये सटा हुआ है दोनों। अब देखो यहाँ पे काफी टर्म्स आगे आपको मिलने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वहां पर आपको मिलेगा एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सो बेसिकली मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया। इतना याद रखना कि ये वाला डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ होता है जो शो ऑफ करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। टिल नाउ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम लोग ने यहाँ पे टर्म शो किया है कंप्रेसेशन एंड रिफ्रैक्शन। एंड कंप्रेसेशन हाई डेंसिटी, रिफ्रैक्शन लो डेंसिटी। यहाँ पे आपको कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं डियर गाइस अबाउट आवर ट्रांसवर्स वेव। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करना। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर अबाउट ट्रांसवर्स वेव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्स वेव। आप लोग ऐसा सोच रहे हो भैया हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन साउंड का तो नाम ही आप नहीं लिए हो अभी तक। वेव में आगे आप साउंड पढ़ा रहे हो कि वेव पढ़ा रहे हो? एक्चुअली आपके लिए जानकारी के लिए बता दो कि वेव पढ़ोगे तभी आपको साउंड समझ में आएगा, क्योंकि साउंड को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए वेव का इंपॉर्टेंस होता है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डायग्राम ऑफ आवर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग आपको फिर मैं बताऊंगा कि ट्रांसवर्स वेव को हम लोग लोकेट करते हैं किस ग्राफ से। ये है मेरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं बार बार कहता हूं अगर यहाँ पे ध्यान नहीं है तो आपका नंबर बहुत कम आने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग लोकेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद बताइए कोई डाउट है, कोई आइडिया है कि डिस्प्लेसमेंट के बाद किस चीज से हम लोग लोकेट कर सकते हैं? देखिए, व्हेन आई वाज टेलिंग यू ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो वहां पे मैंने डेंसिटी का टर्म यूज क्यों किया? क्योंकि वहां पे हम लोग को मिल रहा था कॉम्प्रेसेशन एंड रिफ्रैक्शन, बट यहाँ पे हमें मिलता है क्या? क्रिस्ट एंड ट्रॉफ। याद है कुछ? अभी तो आपको मैंने बताया नहीं भाई, यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। अगर आप जानते हो तो कमेंट करो, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके बताता हूँ। थोड़ा पानी पी लिया जाए। 1 मिनट होल्ड करिएगा, वेट फॉर ए सेकेंड, 1 मिनट जस्ट। ऑल राइट, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ट्रांसवर्स वेव। तो देयर आई टोल्ड यू मैंने डेंसिटी का यूज क्यों किया था? क्योंकि हम लोग को मिल रहा था कॉम्प्रेसेशन एंड रिफ्रैक्शन, बट यहाँ पे क्रिस्ट एंड ट्रॉफ मिलता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कौन सा टर्म? यहाँ पे यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। आप कहिएगा भैया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या अंतर है, पढ़ा रहे हैं? इसका तो आपको मैं तमाचा मारूंगा आपके गाल पे, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 चैप्टर 1 में बताया। दिमाग मत खराब करना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। ओके, आइए ग्राफ के ऊपर। फर्स्ट थिंग द सेम थिंग यू हैव टू ड्रॉ हियर, अपना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखना रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो ये वाला जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर फिर मेरा डिस्टेंस को लेगा एंड ये वाला अपना डिस्प्लेसमेंट को लेगा, ठीक है। चलिए आते हैं डायग्राम के थ्रू। सो हियर गाइस, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो लाइन डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पाथ पे है ना, तो वहां पे ना ही कोई अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, या ही बोलूं तो ना ही कोई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यानी बच्चा अगर थर्ड लॉ पढ़े, सेकेंड लॉ पढ़े, तो आपको पता चलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ में कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है इनर्शिया के कारण, तो सेम कंडीशन में यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। डिस्टर्बेंस नहीं होगा यानी कोई डिस्प्लेसमेंट वो तय नहीं करेगा, तो सेम थिंग आप ऐसे लिख देना, जीरो लाइन डिस्टर्बेंस। अब आते हैं डायग्राम को। तो भैया जीरो से स्टार्ट कर रहा है फिर से।
इस बार ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया। भैया आपको याद होगा ये वाला वाई डैश होता है एंड वाई डैश अपना निगेटिव लेता है एंड ये वाला अपना पॉजिटिव होता है। तो ध्यान देखिएगा, ये वाला जो रीजन होता है ना, जो एबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ये पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। एंड इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफ। ये वाला रीजन को क्या कहते हैं? ट्रॉफ। अब भैया क्रेस्ट एंड ट्रॉफ होता क्या है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। क्रेस्ट इज ए रीजन और इट इज ए हम्प और एलिवेशन, यानी जो ऊंट का ऊपर से ऐसा उठा हुआ रहता है, हम लोग को पता है कि ऑल कैमल्स पोजेसेस देयर ऑन हम्प। तो वही वाला जो हम्प है ना, वो मेरा क्रेस्ट हो गया एंड ये मेरा ट्रॉफ हो गया। कई बार ये ए भी नहीं भी रहता है, तो क्रेस्ट ऐसे समझो या फिर ए ऐड करके समझो, दोनों में आपको इजी रहेगा। CREAST भी लो और CREST भी लो, तो कोई भी लो, आपको कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि बहुत कमेंट आ रहा था भैया आपका स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोले ओके कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक आप डॉट ही नहीं पूछते, हाउ कैन आई हेल्प यू गाइस। हो जाता है कई बार, आप जैसे कई बार सिमिलर टर्म्स होते हैं इन, जैसे आपको मैंने देखा एक स्पाइनल कोड में ऐसे बता दिया CHO। अब मैथमेटिक्स बनाते बनाते आदमी को क्या यही स्पाइनल कोड यूज कर देता है, बट वहाँ पे CORD था ना, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, लेकिन कोई वीडियो नहीं मिल रहा था कि कहाँ पर डिस्कस करें। कोई बात नहीं, यहाँ से आए तो यहीं पे बता दिया मैंने। तो कई बार ऐसे EST A भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा डॉट नहीं आती। लेकिन ड्रॉप भाई सही है। सो ये वाला रीजन जो एलिवेशन वाला है इसे क्रस्ट, एंड ये जो डिप्रेशन वाला ये ड्रॉप। अब ये दोनों डिफरेंस क्या है? सो इस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, पॉजिटिव, एंड इस कंडीशन में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ पे हाई डेंसिटी लो डेंसिटी था, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एंड इस केस हमेशा फॉलो होता है ट्रांसवर्स वेव में, यानी ऐसा डायग्राम जो टर्म आएंगे आपको क्रेस्ट एंड ट्रॉफ भी आएंगे ट्रांसवर्स वेव में, वेयर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यू हैव टू सी अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, compression and refraction, compression and refraction. Okay, have you any doubt? No, according to me you might not be having any doubt. So चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में, देखते हैं, मजा आएगा।